Hello everyone. Hi, क्या हाल है सबके? I'm really sorry I'm 15 minutes late due to something. I was stuck in traffic. I just came home. क्या हाल है guys सबके? सब बढ़िया? Okay. ठीक है बेटा. बेटा, the source of the medium, the source to talk will be the chat box. There will be no thing like कि तुम अपना mute button off कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, वो तुम्हें option भी नहीं होगा वैसे. The source to talk is chat box. Okay. So whatever you have any query regarding anything, you will have to put it on the chat box and you can send it to all panelists. Okay. You can send it to all panelists. Is it clear to everyone? If the things are clear to you, just type a Y on the chat box. If the things are not clear to you, just type a N on the chat box. So I'll be able to understand who all are clear and who all are not. Okay. This is the simple way to communicate. This is the best source to communicate. Okay. So a little bit about myself. I'm Shanky. I have been giving CAT since last 3-4 years. Okay. I am a 99 percentiler. Okay. In DILR as well as QA. Okay. I have been teaching students and some of your friends, if they are in C2C, you can definitely ask them to what level I teach students. Okay. So this is a bit about myself and I'll be teaching you logs today. Okay. How many of you have earlier studied logs? Because I know that there will be some repeaters in the batch and there will be some freshers in the batch. Those who have never read these topics. Okay. Those who have never read this topic. So if you are a repeater, type a R. If you are a fresher, then type a F. Go ahead. R. So majority of the batch lies here. 80% of the batch lies here. 20% of the batch lies here. I have one request for you guys, repeater guys, that I will be starting from the basic of the logs. Okay, I'll be starting with the basics of the log. So don't feel कि तुम्हें चीजें नहीं समझ आ रही हैं. Okay, don't feel कि तुम्हारे लिए बहुत easy चीजें हैं, क्योंकि वो आगे जाके ना जब लेवल मैच कर जाएगा तुम लोगों का दोनों का, तब तुम्हें ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस और किस तरीके की चीजों को मैं पढ़ा रहा हूँ. इज इट ओके? इज इट ओके? इज इट ओके? से यस और नो गाइस. बस अब आप लोगों को सिर्फ एक काम करना है. पूरी चैट के ऊपर आपको सिर्फ दो बटन कीबोर्ड के ऊपर, पूरी चैट बॉक्स पे आपको सिर्फ दो बटन कीबोर्ड के ध्यान रखने, एक वाई और एक एन. जहां पे कुछ नहीं समझ आया आप मुझसे 50 बार पूछो, मैं आपको 50 बार एक्सप्लेन करूंगा. जहां पे आपको समझ आ गया वहां पे आप मुझसे यस लिख के बोल देना, तो अपन आगे बढ़ जाएंगे. सो कैन आई स्टार्ट गाइस? कैन आई स्टार्ट? ठीक है, चलो बेटा. तो लॉग एक्चुअल में होता क्या है सर? हमें तो कुछ बेसिक भी नहीं पता है इसका, तो यहां से स्टार्ट करते हैं बेटा. लॉग मतलब होता है लॉगैरिथम. क्या होता है इसका मतलब? लॉगैरिथम. ठीक है. लॉग का मतलब क्या है कि बेटा अगर मैं लिखता हूं ना 2⁵5, तो इसका आंसर सबको आता है. क्या होता है? 32. ये कैसे आता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. ठीक है. ये एक सोर्स है चीजों को रिप्रेजेंट करने का. तो इसी को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? ये देखो, आप लॉग के फंक्शन में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो. इसको आप लिखोगे लॉग, उसके बाद आप लिखोगे क्या? 32. उसके बाद क्या लिखोगे नीचे? 2 इज इक्वल्स टू 5. ये होता है इसको लॉग के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का. दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब सेम है. बट क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आई? इसको बेटा लॉग बोलते हैं, इस चीज को बेटा बेस बोलते हैं. ये वो नंबर जिसका लॉग ले रहे हैं और ये आपका आंसर. ये वो नंबर जिसका लॉग ले रहे हैं एंड दिस इज योर आंसर. सो इफ आई से दैट a raised to x is equals to b, a raised to x is equals to b, then I will type like log b, log b base a is equals to x. Is the notation clear to everyone? How is log denoted or what is the function of the log? Just type a y. Just type a y if it is clear to you. Okay. So everything in the maths has a particular domain or a range. Okay. Domain range you don't need to understand in the depth. Domain range you don't need to understand in the depth, but you need to have a basic thing. If I'm representing log like this, so there must be some conditions attached to this particular log. There must be some conditions attached to this particular log. Like there will be some kind of a particular condition for A. There will be some kind of particular condition for B. Okay. So this is the case.
सो व्हाट हैपेंस इज, अगर मैं आप लोगों को बोलता हूँ गाइस कि तुम लोग मेरे को ये बात बताओ, अगर मैं बोलूं एक्स स्क्वायर, तो आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो, करेक्ट? आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो, अ पॉजिटिव नंबर, अ नेगेटिव नंबर, एनीथिंग यू गाइस कैन पुट इट, एनीथिंग यू गाइस कैन पुट इट, yes or no, anything you guys can put it. But for the log function to be defined, definition of the log function is in such a way which I think 80% of the class, even they are repeater, they also don't know this, that this is the basic definition and this is how 80% of the questions of the log will be solved, that a is greater than 0, a is not equal to 1 and b is greater than 0. Is it clear? This is the definition of the log. ये आप लोगों को अभी समझ आ जाएगा ये क्या होता है क्या नहीं होता है एक्चुअल में. तो बेसिकली अगर मैं लिखूंगा log 1, ओके, log 1 2 इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो तुम लोग मेरे को बताओगे कि अगर मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो क्या इसका मतलब ये नहीं है वहां यहाँ पे जीरो ही आएगा, यस और नो? वेट, ये कभी भी डिफाइन नहीं होता, ये कभी भी डिफाइन नहीं होता है. ओके, 2 की पावर 0 इक्वल्स टू 1 है, सो कैन आई राइट लाइक दिस कि 2 की पावर 1 बेस क्या है, बेस 2 इज इक्वल्स टू 0. 3 की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, वापस से देखो log 1, log 1 base 3 is equals to 0. So can I say that whatever may be the base, whatever may be the base of log 1, the value will always be equals to 0. यहाँ पे कुछ भी बेस हो इसका, it doesn't matter. यहाँ पे इसका कुछ भी बेस हो, it doesn't matter, but the value of log 1 will always be 0. Is it clear to everyone? Say yes or no. Is it clear to everyone? Say yes or no. Okay. But when I say कि log 1 is log 1 2, is it defined or not? No beta, it's not defined. It is not defined. Why it is not defined? You can calculate, because whenever I will do 1 ka power 5, okay, whenever I will do 1 ka power 5, can I ever get 2? Can I ever get 2? Yes or no? Can I ever get 2? Yes or no? No, you will not be able to get 2. Am I clear? Am I clear? Guys, is it clear to everyone? ठीक है, चलो let's move ahead. So basic thing what I have taught you is that log base AB, log base AB is greater than x. Log base AB is greater than x. Okay, a is greater than 1, b is greater than 0. This is what I have taught. When I write the things like this, that beta 2 raised to power 5 is equals to 32, so then I write log 32 base 2 is equals to 5. So can I, from this particular notation, can I write things like this, that if it is written like this, can I write things like that, that a ki power x will be greater than b, a ki power x will be greater than 3, b, a ki power x will be greater than b. Just check it out, just check it out, just check it out. Compare these two functions. बस यहाँ पे equal to का साइन है, यहाँ पे भी equal to का साइन है, यहाँ पे greater than का साइन है, यहाँ पे भी greater than का साइन है, बाकी सब चीजें same as it is लिखी गई है. Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? Guys, अगर तुमने definition log की ढंग से पढ़ ली, there will be no question कि तुम कोई question solve ना कर पाओ. There will be no question कि तुम कोई question solve ना कर पाओ. अगर यहाँ पे ऐसे दे रखा है log base a b is less than x, so can I write a की power x will be less than b? Can I write like a की power x will be less than b? Correct? Chalo. Now move on to the first question. What kind of a questions can be expected in exam? These are all the properties that you need to know before entering into the log thing. Okay, अभी properties और बहुत सारी पढ़ेंगे, टेंशन मत लो. बट अभी ये ठीक है, ये बेटा बेस में है, ठीक है, log base 2 log 3, ठीक है, log बेस में वापस से 3 और अंदर x, ठीक है, is greater than 0. So find the value of x. ये ऐसे आएगा, find the value of x या फिर find x range, ऐसे क्वेश्चन आएगा. तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा. आप लोग अभी नए हो तो आप लोगों को कोई क्वेश्चन टेस्ट करने के लिए नहीं दूंगा. आप लोग अभी नए हो तो आप लोगों को कोई क्वेश्चन टेस्ट करने के लिए नहीं दूंगा. सिर्फ सिंपल सा लॉजिक बताऊंगा आपको. गाइस, सिर्फ ये चीज याद रखना, log ab, ओके, log ab is greater than 0. So can I write a की power 0 will be greater than b? What I have defined a log ab is that a should be greater than 0, b should be greater than 0, and b should be equal to 1.
these three conditions are clear to everyone, yes or no? These three conditions are clear to everyone, say yes or no everyone. Guys, can I write like this कि ये अगर मैं इस पूरी एंटिटी को y मान लूं, अगर मैं इस पूरी एंटिटी को y मान लूं, so is it the written like this, log base 2 y is greater than 0? Log base 2 y is greater than 0, yes or no? Guys, yes or no? Can I write from this y is greater than 2 की power 0? Y is greater than 2 की power 0, yes or no? Can I write like this? Can I write like this? ठीक है, ये चीज सबको समझ में आई? देखो बेटा वापस से यहाँ पे हम लिखते थे बेटा 2 की पावर 5 इज इक्वल्स टू 32, ये हमने सीखा है। हम रिप्रेजेंट कैसे करते थे, log 32 बेस 2 इज इक्वल्स टू 5, हम ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, यस और नो? यस और नो? यहाँ पे अब देखो शुभरता साहू, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 की पावर 6 is greater than 120, is it correct? 128 is greater than 120, is it correct? yes or no? ये चीज सबको पता है। तो 2 की पावर 6 is greater than 120, so ये तुम मैं कंफ्यूज कर देगा, इसको छोड़ो एक बार के लिए, इसको छोड़ो, यहीं से समझो। 2 की पावर 5 इज इक्वल्स टू 32 लिखा हुआ है बेटा, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर इसको खोल रहा हूं तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यस और नो? अगर यहाँ पे आपको दे रखा है log 2 32 इज इक्वल्स टू 5, तो इससे आप क्या डिराइव कर रहे हो कि 2 की पावर 5 इज इक्वल्स टू 32, यस और नो? यस और नो? यही डिराइव कर रहे हो आप लोग। तो बेटा यहाँ पे क्या करोगे, log बेस 2 y दे रखा है ग्रेटर देन 0, अगर मैं यहाँ पे तुम्हें इक्वल टू दे देता तो तुम इक्वल टू 0 के लिए क्या करते, तुम ये लिखते y इज इक्वल्स टू 2 की पावर 0। कंपेयर करो इन दोनों फंक्शंस को, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। कंपेयर करो इन दोनों फंक्शंस को, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। समझा सबको? अभी यस लिखो एक बार, सब सबको समझा तो यस लिखो एक बार, ठीक है। तो अगर यहाँ पे गाइस ग्रेटर देन का साइन दिया तो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लग के y इज ग्रेटर देन 2 रेज टू 0 हो जाएगा, यस और नो? y इज ग्रेटर देन 2 रेज टू 0 हो जाएगा, यस और नो? यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, तो 2 रेज टू 0 क्या होता है, 2 रेज टू 0 क्या होता है, y विल बी ग्रेटर देन 1, यस और नो? y विल बी ग्रेटर देन 1, से यस और नो? ठीक है, तो y 1 से बड़ा आ गया, लेकिन हमने y किसको माना है, log base 3 x को हमने y माना है, that is greater than 1. So can I say that x will be greater than 3 की power 1? Can I say that x will be greater than 3 की power 1? Compare these two, compare these two. Same लिखा है, same ही लिखा है, yes or no? Yes or no? Yes or no? Everyone understood this? तो बेटा मेरा आंसर क्या आएगा, x belongs to 3 to infinity। ये कौन आंसर करेगा, ये पूरी दुनिया आंसर करेगी, ठीक है, ये पूरी दुनिया आंसर करेगी, लेकिन एक C2C का स्टूडेंट ये आंसर नहीं करेगा। मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों नहीं करेगा वो आंसर ऐसा। बेटा मैंने जब आप लोगों को कंडीशन पढ़ाई थी, मैंने जब आप लोगों को एक कंडीशन पढ़ाई थी, log बेस ए बी, ठीक है, log बेस ए बी, इसके लिए क्या डेफिनेशन थी, a इज ग्रेटर देन 0, b इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1, यस और नो? क्या मैंने आपको ये कंडीशन पढ़ाई है, यस और नो? बेटा ये देखो, अगर मैंने इसको ये लिया log 2y, अगर मैंने इसको यहाँ पे लिया log 2y, तो क्या मेरा a ग्रेटर देन 0 है, क्या मेरा a ग्रेटर देन 0? इज इट सेटिस्फाइड, इज इट सेटिस्फाइड, यस और नो? इज इट सेटिस्फाइड से यस और नो? बेटा क्या मेरा a इक्वल टू 1 है क्या, क्या मेरा a इक्वल टू 1 है क्या? नो, a इज नॉट इक्वल टू 1, a इज इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड, बट यहाँ पे एक कंडीशन रह गई b इज ग्रेटर देन 0 की, वो चेक करना रह गई है हमें। सबको समझा, सबको समझा? तो हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि log बेस 3x इज ग्रेटर देन 0, सबको ये कंडीशन समझ में आई, यस और नो? ये क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि log की डेफिनेशन वो है, log की डेफिनेशन वो है, log बेस 3x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 3 की पावर 0, x इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 1। क्या ये चीज सबको समझ में आई, यस और नो? क्या ये चीज सबको समझ में आई? एक जगह वो मेरे को बोल रहा है बेटा x इज ग्रेटर देन 1, और एक जगह मेरे को बोल रहा है x इज ग्रेटर देन 3, तो तुम लोग क्या आंसर लिखोगे, तुम लोग क्या आंसर लिखोगे? यहाँ पे मैं तुम्हें नंबर लाइन पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ इस टॉपिक को भी। ये देखो यहाँ पे एक नंबर लाइन है, ठीक है, ये 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ये मेरे को बोल रहा है बेटा कि x 1 से बड़ा होगा, और दूसरी कंडीशन मेरे को बोल रही है x 3 से बड़ा होगा, तो आंसर मैं क्या दूंगा कि x विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 3। क्यों दूंगा, क्योंकि मेरे को कॉमन पोर्शन ढूंढना होता है दोनों का, तो ये उसका कॉमन पोर्शन होगा, ये उसका कॉमन पोर्शन होगा। क्या फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को क्लियर है कि ये आंसर क्यों ऐसा निकला, ये आंसर क्यों ऐसा निकला, और ये कंडीशन को चेक करना क्यों इतना इंपॉर्टेंट था? इज इट करेक्ट?
क्या फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को क्लियर है कि ये का आंसर क्यों ऐसा निकला और क्यों इसको ऐसे चेक करना पड़ता है एक बार और? तो सबको दो चीजें क्लियर है, लॉग की डेफिनेशन क्लियर है सबको, यस और नो? लॉग की डेफिनेशन क्लियर है सबको, यस और नो? ठीक है, तो वो डेफिनेशन पे आपके आधे क्वेश्चन निकल जाएंगे, डेफिनेशन पे आपके आधे क्वेश्चन निकल जाएंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस के लिए प्रॉपर्टीज होती है वो अपन पढ़ेंगे। सेकंड वाला पार्ट अगेन बेटा, यहाँ पे अपन ने लिखा था ना log a b, a is greater than 0, a is greater than 0, b is greater than 0 and a is not equal to 1। तो यहाँ पे जो b था वो यहाँ पे y तो था, यहाँ पे हमने इसको रिप्रेजेंट कैसे किया था, log base 2 और इसको y ले लिया था, तो यहाँ पे b क्या हो गया, यहाँ पे b y हो गया। तो y के y is greater than 0, अगर y greater than 0 होगा तो ये कंडीशन को चेक करना पड़ेगा। समझ गए, समझ गए सुब्रता? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तुम लोग एक क्वेश्चन ट्राई करोगे तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, तुम लोग एक क्वेश्चन ट्राई करोगे तो तुम्हें भी कॉन्फिडेंस आएगा। लॉग 2, लॉग ये बेस में है बेटा 2, ये लॉग 3 बेस में है और यहाँ पे दे रखा है लॉग 5x। ठीक है, लॉग बेस 5 और अंदर दे रखा है x इज ग्रेटर देन 0, फाइंड x। अच्छे से करना, दिमाग लगा के करना, बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व कर लोगे। नहीं कर पाओगे तो कोई बात नहीं, मैं सॉल्यूशन बताऊंगा इसका अच्छे से, तब समझ जाओगे, कोई पीछे नहीं रहेगा। ट्राई करो, ट्राई करो। बेटा जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ काफी लोगों ने इसका आंसर दे दिया मेरे को, है काफी लोगों ने इसका आंसर दे दिया। आप चेक करेंगे कि वो आंसर गलत था या सही था। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ है ना इसको कैसे नोट करना है, आपको सिर्फ कैसे नोट करना है जैसे मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है। क्या मैंने आप लोगों को एक ये प्रॉपर्टी सिखाई हुई है, लॉग ए बी अगर ग्रेटर देन 0 है तो ए की पावर 0 विल बी ग्रेटर देन बी, ए की पावर 0 विल बी ग्रेटर देन बी। क्या मैंने आप लोगों को ये प्रॉपर्टी सिखाई है, यस और नो? यस और नो? क्या मैंने आप लोगों को ये प्रॉपर्टी सिखाई है, से यस और नो? बस मेरे को हाँ या ना में अब जवाब देते जाओ, भीतर जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं हाँ या ना में जवाब देते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। गाइस सिंपल, क्या मैं पूरी इस टर्म को y मान लूंगा एक बार के लिए, क्या मैं पूरी इस टर्म को y मान लूंगा इस बार के लिए, यस और नो? कैन आई राइट लाइक दिस, log 2y is greater than 0, so log 2y is greater than 0, so 2 की power 0 will be greater than y. Can I write like this? Or y will be greater than 2 की power 0, sorry, y will be greater than 2 की power 0, yes or no? यहाँ पे गलत कर दिया, b will be greater than a की power 0. okay, yes or no? yes or no? यही सिखाया अभी पिछले क्वेश्चन में, यही करके आए हो सब लोग, yes or no? guys come on tell me yes or no. ठीक है, सो y इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, y इज ग्रेटर देन 1, ठीक है बहुत अच्छी बात है। y लिख दूंगा यहाँ पे log बेस 3 log
बेस 5 अंदर x इज ग्रेटर देन 1। इस टर्म को क्या ले लूंगा, इस टर्म को z ले लूंगा। log 3 z इज ग्रेटर देन 1, सो z इज ग्रेटर देन 3 की पावर 1। यहां तक सबको क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर है, यस और नो? यहां तक सबको क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर है, यस और नो? ठीक है, सबको क्लियर है, वेरी गुड। बेटा अब z जो लिया है वो अपन ने ये लिया log 5x इज ग्रेटर देन 3। यहां तक सबको क्लियर है, log बेस 5x इज ग्रेटर देन 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x विल बी ग्रेटर देन 5 की पावर 3। सबने ये निकाल दिया था, x विल बी ग्रेटर देन 125, सबने ये निकाल दिया था गाइस। ये हर स्टूडेंट करता है, ये एक बेसिक चीज है। आप C2C नहीं, आप कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो, ये हर स्टूडेंट कर देगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट फर्क कहाँ आएगा, फर्क यहाँ पे आएगा बेटा, ये इस डेफिनेशन का फर्क आ जाएगा। a इज ग्रेटर देन 0, b इज ग्रेटर देन 0, a इज नॉट इक्वल टू 1। ये तीन चीजों का फर्क पेपर में और मार्क्स में डिफरेंस क्रिएट करेगी, आपके भी और बाकी स्टूडेंट्स में भी। ये देखो गाइस, जब मैंने इसको पूरे टर्म को y लिया, जब मैंने इसको, मैं रेड पेन से लिखता हूँ, जब मैंने इसको पूरी टर्म को y लिया तो मेरे को y के लिए कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि a तो सेटिस्फाइड है, a तो सेटिस्फाइड हो गया है यहाँ पे, a इज ग्रेटर देन 0, a इज नॉट इक्वल टू 1, इट्स सेटिस्फाइड। क्या मेरे को y के लिए पूरी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, y शुड बी ग्रेटर देन 0? क्या मेरे को y के लिए पूरी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि y शुड बी ग्रेटर देन 0? तो अगर मैं लिखूंगा log बेस 3 log बेस 5x should be greater than 0, so log 5x should be greater than 3 की पावर 0। अभी डायरेक्ट कर दिया मैंने, अभी डायरेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है। log 5x should be greater than 1 and x should be greater than 5 की पावर 1। यहां तक सबको क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर है? तो ये बोल रहा है कि x 5 से बड़ा होना चाहिए, x 5 से बड़ा होना चाहिए। क्या मेरे को सिर्फ y की कंडीशन चेक करनी है या मेरे को किसी और चीज की भी कंडीशन चेक करनी है? क्या मेरे को सिर्फ y की कंडीशन चेक करनी है या किसी और चीज की भी कंडीशन चेक करनी है? हाँ या ना में जवाब दो गाइस। यहाँ पे मेरे को एक और इनपुट की वेरिएबल की कंडीशन चेक करनी होगी, वो होगी z, वो होगी z। z की क्यों कंडीशन चेक करनी होगी, क्योंकि ये भी तो देखना पड़ेगा ना, ये भी तो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो फिर हम z करेंगे, z शुड बी ग्रेटर देन 0, log बेस 5x शुड बी ग्रेटर देन 0, x शुड बी ग्रेटर देन 5 की पावर 0, x शुड बी ग्रेटर देन 1। यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक आप लोगों ने किया है तो आप लोग मेरे साथ हो, अदरवाइज बेटा ध्यान दो, क्लास के अंदर बेटर वे में समझने का ट्राई करो। यहाँ तक सबको क्लियर है? तो बेटा मेरे पास तीन कंडीशन निकल के आई एक्स के लिए, तीन कंडीशन निकल आई एक्स के लिए। तीन कंडीशन क्या क्या है कि ये अगर मेरी एक नंबर लाइन है, ये 1 है, ये 5 है और ये 125 है, तो एक कंडीशन बोल रही है कि x शुड बी ग्रेटर देन 1, एक कंडीशन बोल रही है x शुड बी ग्रेटर देन 5 और एक कंडीशन बोल रही है x शुड बी ग्रेटर देन 125। तो कॉमन पोर्शन तीनों का कौन सा होगा, कॉमन पोर्शन तीनों का कौन सा होगा कि x शुड बी ग्रेटर देन 125। आपका आंसर अभी चेंज नहीं होगा, बट आगे जाके कंडीशंस का इतना इंपॉर्टेंट रूल हो जाता है ना, कंडीशन की वजह से आंसर चेंज हो जाते हैं। क्या ये चीज सबको क्लियर है, यस और नो? क्या ये चीज सबको क्लियर हुई, ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ, यस और नो? ठीक है, चलो बेटा ये हो गए आपके, ये बेटा कैट में पूछे हुए क्वेश्चंस है, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, आप ट्राई कर सकते हो। ये कैट के 2007 और 2009 के पेपर के क्वेश्चन है, ये मैंने मन से क्वेश्चन नहीं बनाया आप लोगों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं एक बार के लिए। अभी तो हमने दो क्वेश्चन देख लिए कैट लेवल के, तो अब हम एक बार प्रॉपर्टीज देखते हैं लॉग की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ध्यान से देखो, मैंने आप लोगों को पढ़ाया लॉग बेस ए बी, ये एक लॉग का फंक्शन है, ए शुड बी ग्रेटर देन 0, ए इज, ये मेरा बार बार बोलने का सेंस क्या है बेटा कि ये चीजें आपके माइंड में एक बार बैठ गई ना, बस फिर ये निकलेंगी नहीं कभी भी, ठीक है। ए इज ग्रेटर देन 0, ए इज नॉट इक्वल टू 1, बी इज ग्रेटर देन 0। क्या ये चीज सबको क्लियर है, क्या ये चीज सबको क्लियर है, यस और नो? तो अगर मैं आप लोगों को एक फंक्शन देता हूँ लॉग बेस एक्स और वैल्यू उसकी 1 - x, तो आप इसको कैसे चेक करोगे कि ये लॉग का फंक्शन डिफाइन कहाँ पे हो रहा है, लॉग का फंक्शन डिफाइन कहाँ पे हो रहा है? आप पहले बोलोगे कि सर a इज ग्रेटर देन 0, सिखाया आपने, बहुत अच्छी बात है। फिर आपने बोला a इज नॉट इक्वल टू 1, ये भी आपने बहुत अच्छे से बताया। फिर उसके बाद आपने बोला सर 1 - x जो है ये भी 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि 1 x 1 से छोटा होना चाहिए, यानी कि x 1 से छोटा होना चाहिए। यहाँ तक सबको क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है, यस और नो, यस और नो? ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। तो अब अगर मैं देखूं गाइस, ये एक जगह बोल रहा है x शुड बी ग्रेटर देन 0 और एक जगह बोल रहा है x शुड बी लेस देन 1। x शुड बी ग्रेटर देन 0, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, x शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड x शुड बी लेस देन 1।
और 1 तो इक्वल के हो नहीं सकता, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा कि x बिलोंग्स टू 0 to 1। कुछ भी वैल्यू डालो 0 से 1 के बीच में लॉग फंक्शन डिफाइन होगा। ये ब्रैकेट्स वगैरह आप सब पढ़ोगे क्लासेस के अंदर, जब आप ज्वाइन कर लोगे तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि x बिलोंग्स टू 0 to 1, x बिलोंग टू 0 to 1। yes or no, is it clear? Is it clear? yes or no? yes or no? यहाँ तक सबको क्लियर है? चलो बेटा अब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है, आवाज आ रही है सबको? गाइज यहाँ तक किसी को लगा कि पेस बहुत फास्ट हो गया सर, पेस बहुत ज्यादा फास्ट हो गया सर, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया अभी तक, किसी को अच्छा लगा? अनुभव, आपका आंसर आवाज के लिए था या फिर पेस के लिए था? आपका आंसर आवाज के लिए था या पेस के लिए था? बहुत फास्ट हो गया है बेटा, इससे धीरे तो देखो मैं ऑनेस्टली क्लासेस में भी नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि अगर ऐसे पढ़ाने लग गया तो फिर आप लोगों को ये वाला एग्जाम टारगेट करना है। कौन सा एग्जाम टारगेट करना है? कैट 2022 टारगेट कर सकते हो बेटा। इससे धीरे पेस में जाने का कोई सेंस बनेगा नहीं मेरे लिए, इतने पेस पे मैं पढ़ाना चाहूंगा। बाकी आपको डाउट है आप भले ही पूछो मुझसे 50 बार, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलो प्रॉपर्टीज के ऊपर आते हैं बेटा। लॉग ए बी अगर एक ऐसे लिख रखा है तो इसको एक रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है। बट सबसे पहले एक चीज सीखो, अगर मेरे को कोई भी नंबर दे रखा है log 5, log 7, log 15, log 35, ऐसे करके कोई भी नंबर दे रखा है, और अगर उसके अंदर कोई भी बेस अटैच नहीं है, अगर उसके अंदर कोई भी बेस अटैच नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट बेस क्या होता है? बाय डिफॉल्ट बेस क्या होता है? 10। ठीक है, बाय डिफॉल्ट बेस क्या होता है? 10। ये चीज सबको समझ आ गई? आप मत करो रिप्रेजेंट, आप करो रिप्रेजेंट, इट डजेंट मैटर, बट बाय डिफॉल्ट बेस क्या होगा? 10 ही होगा। जब तक वहां पे कोई भी ए की वैल्यू दी नहीं हुई तुम लोगों को, वहां पे बेस क्या होगा? वहां पे बेस 10 ही होगा। क्या ये चीज सबको क्लियर है? यस और नो? एवरीवन विल टाइप इट। ठीक है, ठीक है, ट्राई करता हूँ बेटा। अनुभव, आप क्लास में हो या आप चले गए हो? अनुभव है या नहीं है, देखते हैं पहले। अनुभव, आप क्लास में हो? आप एक बार देखो, मैं थोड़ा और ट्राई करता हूँ स्लो करने का बेस को, बट बाकी स्टूडेंट्स का नुकसान नहीं कर सकता। ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स का नुकसान नहीं कर सकता बेटा, वो लोगों का टाइम जाएगा, फिर वो लोग सीख नहीं पाएंगे ढंग से। तो लॉग ए बी इज इक्वल्स टू, इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है लॉग बी बाय लॉग ए। ये प्रॉपर्टी सबको क्लियर है? ये प्रॉपर्टी सबको क्लियर है? तो अगर मेरे पास ऐसा लिखा होगा log base 2 और 3, log base 2 और log 3, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो आप? log 3 बाय log 2। ये प्रॉपर्टी सबको क्लियर है? यस और नो? ये होती है पहली प्रॉपर्टी, ये होती है पहली प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी सबको क्लियर है? बट अगर मेरे को सिर्फ log 3 दे रखा है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ log 3 अपॉन log 10? इज इट रॉन्ग? इज इट रॉन्ग? इज इट रॉन्ग? यस और नो? नो, इट्स नॉट रॉन्ग, इट्स करेक्ट। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यही सिखाया है। क्योंकि बाय डिफॉल्ट बेस क्या है? बाय डिफॉल्ट बेस क्या है? बाय डिफॉल्ट तो बेस यही है। ठीक है, कभी पेपर में ऐसा आ जाए एल एन करके और ई, एल एन करके और ई, तो ये भी लॉग फंक्शन ही होता है, ये भी लॉग फंक्शन ही होता है। ये चीज सबको समझ आ गई? लॉग की जगह पूरा लॉग ना लिखा हुआ है और एल एन आ जाए लिखा हुआ, तो वो भी लॉग फंक्शन ही होता है। ये चीज सबको समझ आ गई? ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 2 पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 पढ़ते हैं। log m into n is equals to log m plus log n। ऑब्वियसली मैंने कोई बेस नहीं डिफाइन किया, आपको बेस डिफाइन करना है तो आप ऐसे करोगे log base 10 m into n is equals to log base 10 m plus log
बेस 10n। ये प्रॉपर्टी सबको क्लियर है, यस और नो? ये प्रॉपर्टी सबको क्लियर है? अभी एग्जांपल दे रहा हूं, देखो नहीं समझ से तो देखो इसको। इसको लिखेंगे अपन log 5 इंटू 7। तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? log 5 प्लस log 7। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ये हो गई आपकी प्रॉपर्टी नंबर 2। क्या हो गई ये हो गई आपकी प्रॉपर्टी नंबर 2। अब यहाँ पे कोई बेस नहीं है तो अब आप लोगों को समझ आ जाएगा कि बेस 10 की बात हो रही है। यहाँ पे कोई बेस नहीं है तो यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा कि बेस 10 की बात हो रही है, यस और नो? यहाँ पे कोई बेस नहीं है तो क्या आप लोगों को समझ आ जाएगा कि बेस 10 की ही बात हो रही है? ओके, चलो थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं बेटा। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, लॉग एम। अब प्रोडक्ट में हुआ है तो डिवाइड में भी कुछ ना कुछ होगी। अगर प्रोडक्ट में हुई है तो डिवाइड में भी कुछ ना कुछ होगी। ये होती है बेटा लॉग एम माइनस लॉग एन। ठीक है, लॉग एम माइनस लॉग एन। इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है बेटा। ये देखो, log 5 प्लस log 7 इज इक्वल टू log 5 इंटू 7। ये हो गया log 35। वाइस वर्सा भी ट्रू है। आप इसको ऐसे पकड़ो, बीच में इक्वल टू का साइन है ना बेटा अनुभव, बीच में इक्वल टू का साइन है, तो ये प्लस ये इज इक्वल्स टू ये करना, ये करो, दिस इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस करना, ये करो, दोनों आंसर सेम होगा। क्या सेकंड प्रॉपर्टी सबको क्लियर है? ये देखो बेटा, कई बार क्या होता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, log 5 की वैल्यू कैसे निकलती है? log 5 की वैल्यू कैसे निकलती है? देखो बेटा, क्या मैं log 5 को लिख सकता हूँ log 10/2? log 5 को लिख सकता हूँ log 10/2, यस और नो? log 10/2 को क्या लिख सकता हूँ? log 10 माइनस log 2। क्या मैं ये लिख सकता हूँ? यस और नो? यस और नो? अब आप लोगों को एक प्रॉपर्टी और समझनी होगी। ये प्रॉपर्टीज बेटा मैंने मेरे घर से नहीं बनाई है, ठीक है? तो कहीं आप लोगों को लगे कि सर ये कहाँ से आ रही है, बेटा ये सारी प्रॉपर्टीज हैं। आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास यही आंसर आएंगे। अब आप मेरे को एक बात बताओ गाइस, क्या मैं ये लिख सकता हूँ log बेस ए और यहाँ पे भी a इज इक्वल्स टू 1? मतलब कहने का कि 2 की पावर 1 इज इक्वल्स टू 2 होता है। एवरीवन नोज दिस, 2 की पावर 1 इज इक्वल्स टू 2 होता है। और इसको अगर मेरे को log फंक्शन में डिफाइन करना होगा तो क्या मैं ऐसे डिफाइन करूंगा, log बेस 2 2 इज इक्वल्स टू 1, log बेस 2 2 इज इक्वल्स टू 1, log बेस 2 उसकी 2 इज इक्वल्स टू 1। ये स्टेप सबको क्लियर है? तो जब भी मेरे पास ऐसा कोई फंक्शन बनेगा, जब भी मेरे पास कोई ऐसा फंक्शन बनेगा तो उसकी वैल्यू 1 आएगी, यस और नो? इज एवरीवन विद मी टिल हियर, यस और नो? बेटा यस और नो, समझ गए? तो क्या मैं बोल सकता हूं यहाँ पे कि यहाँ पे इसका बेस डिफाइन नहीं है तो इसका बेस क्या है? बाय डिफॉल्ट बेस क्या होता है इसका? अगर बेस डिफाइन नहीं है तो इसका बेस क्या होगा? बाय डिफॉल्ट 10 होगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो गई 1 माइनस लॉग 2। तो समझ में आया, log 5 की एक और वैल्यू होती है 1 माइनस log 2। और वो कहां से आई? क्या वो स्टेप समझ में आया? क्या वो स्टेप समझ में आया? इसको आप बेटा फोर्थ प्रॉपर्टी लिख सकते हो। ये प्रॉपर्टी बहुत काम की प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी बहुत काम की प्रॉपर्टी है। ठीक है, किसी को नोट करना है? किसी को नोट करना है या आगे बढ़ जाऊं? किसी को नोट करना है या आगे बढ़ जाऊं? कैन आई गो अहेड? जस्ट टाइप अ वाई इफ यू आर रेडी टू गो अहेड। ठीक है, चलो। हम बोलते हैं बेटा, एक प्रॉपर्टी है, फिफ्थ प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूं। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या बोलती है बेटा? लॉग एम ऐसे डिफाइन है, बेस इसका 10 है और m की पावर n है। m की पावर n है, ठीक है, m की पावर n है। तो इसका आंसर हो जाता है n, आगे आ जाता है लॉग में मल्टीप्लीकेशन में, और अंदर ये टर्म रह जाती है। मतलब क्या हुआ इसका कि log बेस 10 2 स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर का 2 क्यूब है, क्यूब से समझो, 2 क्यूब है तो 3 आगे आ जाएगा और log 10 2 पीछे एज इट इज रह जाएगा। क्या ये प्रॉपर्टी आप लोगों को क्लियर है? यस और नो? यस और नो? क्या ये प्रॉपर्टी आप लोगों को क्लियर है? यस और नो? ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी होती है। क्या मैंने आपको सिक्स्थ प्रॉपर्टी स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में पढ़ा दी थी? क्या मैंने आपको फिफ्थ प्रॉपर्टी स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में पढ़ा दी कि अगर ऐसे रिप्रेजेंटेशन है किसी चीज का, सो आई कैन राइट कि a की पावर x इज इक्वल्स टू b? क्या मैंने आपको ये सबसे पहली प्रॉपर्टी पढ़ाई थी? यस और नो? लक्ष्य बेटा आपने हाथ खड़ा किया, कुछ हुआ? लक्ष्य बेटा आपने हाथ खड़ा किया, कुछ हुआ है क्या?
ठीक है गाइज, ये सिक्स्थ प्रॉपर्टी तक सबको क्लियर है। सेवेंथ प्रॉपर्टी क्या बोलती है लॉग की? सेवेंथ प्रॉपर्टी क्या बोलती है? लॉग बेस ए बी इज इक्वल्स टू एक्स है, ये ठीक है। बट अगर लॉग एक्स इज इक्वल्स टू लॉग वाई है तो आप लोग लॉग कैंसिल करके एक्स इक्वल्स टू वाई लिख सकते हो। बट दोनों में कंडीशन क्या होगी? एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो एंड वाई शुड बी ग्रेटर देन जीरो। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? क्योंकि ये तो मैंने बेसिक प्रॉपर्टी बताई हुई है आपको कि यहाँ पे डेफिनेशन क्या है इसकी? ए इज ग्रेटर देन जीरो, बी इज ग्रेटर देन जीरो एंड ए इज नॉट इक्वल टू वन। क्या ये तीन स्टेप याद रख पाओगे जिंदगी भर अब लॉग्स के? क्या ये तीन स्टेप याद रख पाओगे जिंदगी भर लॉग्स के? यस और नो? ठीक है, तो ऐसे करके प्रॉपर्टीज आती हैं, ऐसे करके प्रॉपर्टीज आती हैं। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। यस और नो? ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे। अब एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे प्रॉपर्टीज के ऊपर, दो तीन क्वेश्चन ट्राई करते हैं, उसके बाद तुम्हें पिक्चर और क्लियर होती जाएगी। ठीक है, प्रॉपर्टीज के ऊपर और जो एनमैट वगैरह में भी क्वेश्चन आते हैं वो भी ट्राई कर लेते हैं एक बार के लिए, तो तुम्हारी कॉन्फिडेंस और होल्ड दोनों बैठ जाएगा इस टॉपिक पे। कॉन्फिडेंस भी बैठ जाएगा और होल्ड भी बैठ जाएगा। लॉग बेस एक्स माइनस वन और ऊपर लॉग बेस एक्स माइनस वन और ऊपर टू माइनस। ठीक है, मेरे को ये बताना है कि बेटा x की कितनी वैल्यूज ऐसी होंगी इंटीग्रल, x की कितनी इंटीग्रल वैल्यूज ऐसी होगी जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगी, जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगी। बेटा गो अहेड एंड ट्राई दिस क्वेश्चन आउट एंड आई विल हेल्प यू विद द सॉल्यूशन आफ्टर 2 मिनट्स। ठीक है, गो अहेड, डू दिस क्वेश्चन एंड आई विल हेल्प यू आउट विद द सॉल्यूशन आफ्टर 2 मिनट्स। ओके, ट्राई करो, बहुत इजी क्वेश्चन है, तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा है इस क्वेश्चन में। और रिपीटर, तुम लोग मेरे को बताओ गाइस, तुमने कभी भी ये क्वेश्चन देखा नहीं है एग्जाम में? कितने कितनी बार ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं लॉग्स के जहां पे बोलता है कि एक्स की इंटीग्रल वैल्यूज बताओ कितनी सेटिस्फाई करेगी, बट हम इतना डर जाते हैं कि हम कभी उसे सॉल्व ही नहीं करते। हमें लगता है यार इंटीग्रल वैल्यूज कौन निकालेगा बैठ के, कितनी होगी हमें क्या पता यार, और एक कम निकाल दी एक गलत निकाल दी तो पंगा पड़ जाएगा। तो अब आप लोगों को इसका मेथड भी पता चल जाएगा, तो आप देखो एक बार। वेरी गुड शुभा ब्रता साहू, वेरी गुड। प्रतीक्षा गोगोई, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। बेटा समझ आया कंसेप्ट एक्चुअल में कि क्यों आंसर ऐसा निकला? प्रतीक्षा एंड शुभा ब्रता साहू, साहू साहब आपको ऐसे बोलूंगा, साहू बोल लूंगा, फर्स्ट नेम लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। तुम लोगों को समझ आया? तुम लोगों को अभी क्वेश्चन इजी लगा पढ़ने के बाद चीजों को? तो बेटा सिंपल सा स्टेप था, हम लोगों ने आपको कुछ नहीं है, ये है, ये पढ़ाया था। a इज ग्रेटर देन जीरो, b इज ग्रेटर देन जीरो एंड a इज नॉट इक्वल टू वन, यही पढ़ाया है। इसी के ऊपर पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। x माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन जीरो, x शुड बी ग्रेटर देन वन, टू माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो, x शुड बी लेस देन टू, और a इज नॉट इक्वल टू वन मतलब x माइनस वन इज नॉट इक्वल टू वन, तो x इज नॉट इक्वल टू टू। यही सिखाया आप लोगों को, तीन ही चीजें सिखाई है, तीन ही चीजों पे क्वेश्चन आ गया। ये बोल रहा है कि बेटा x इज ग्रेटर देन वन, लक्ष्य तेरा आंसर नहीं आया, x इज ग्रेटर देन वन एंड इज लेस देन टू, क्या इसके बीच में कोई भी इंटीग्रल वैल्यूज लाई करेगी क्या? देखो यहाँ वन आ गया, यहाँ टू आ गया, इंटीग्रल वैल्यूज होती कौन सी है?
इंटीग्रल वैल्यूज वो होती है जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। 1.2 दिस इज नॉट एन इंटीग्रल, दिस इज अ डेसिमल फॉर्म, दिस इज अ डेसिमल फॉर्म। गाइस क्लियर एंड अ ग्रिप ऑन द क्वेश्चन, एनमैट क्वेश्चन। गाइस सिर्फ लक्ष्य साहू और प्रतीक्षा नहीं पढ़ रहे हैं, बाकी स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे हैं, तो आप लोग भी अपना व्यू बताओ कि आप लोगों को समझ आया कि इसका आंसर ये क्यों हुआ, जीरो इंटीग्रल वैल्यूज क्यों आया इसका आंसर। सब लोग यस लिखो अगर समझ आया तो, सब लोग यस लिखेंगे अगर समझ आया तो। चलो बढ़िया है, एक और क्वेश्चन ट्राई करो। एनमेट थोड़ी सी लेवल डिफिकल्टी बढ़ाता है लॉग के अंदर, तब ऐसा क्वेश्चन आता है। लॉग बेस x माइनस 1 और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ट्राई करो, जल्दी करो। अनुभव तेरे को समझ आया ना? Simple again, a is greater than 0, b is greater than 0 and a is not equal to 1. चेक करते हैं, x minus 1 should be greater than 0, x should be greater than 1. यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? x minus 1 is not equal to 1, x is not equal to 2 और x square minus 3x plus 2, x square minus 3x plus 2 should be greater than 0. x square minus 2x minus x plus 2 is greater than 0. कोई ऐसा बच्चा है क्लास में जिसको इसको फैक्टराइज करना नहीं आता? मेरे को बता दो, मैं सिखा दूंगा एक ही मिनट में, और जिंदगी में नहीं भूलोगे उस चीज को कभी भी। शर्माना मत कि ये नहीं आता सर, शर्म आ जाएगी, लिख दिया ग्रुप के ऊपर कि हाँ सर बेइज्जती हो गई मेरी, तो कुछ मत सोचना ऐसा, सीखने आए हो सीख के जाओ। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को फैक्टराइज करना आता है सबको? यस। अगर आता है तो y लिखो, नहीं आता तो नो लिखो। बेटा देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है, इसको कैसे फैक्टराइज करते हैं? आप इस टर्म को पकड़ते हो और यहाँ पे जो इसका कोफिशिएंट होता है, जैसे यहाँ पे तो 1 है इसका कोफिशिएंट, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमने 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा, हमारा डिजायर्ड आउटपुट 2 आया। हम 2 ऐसा लाने की कोशिश करेंगे दो नंबर से कि हमारा उसका सम ये बन जाए। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ -2x और -x, -2 और -1, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर क्या आएगा? 2। समझ में आया सबको? हम बीच वाला नंबर इस तरीके से लाने की कोशिश करेंगे कि दो नंबर्स का अगर सम करूं तो ये आना चाहिए और मल्टीप्लाई करूं तो ये आना चाहिए। समझ गए? समझ गए? तो ये हो गया x माइनस 2, ये हो गया x माइनस 1, ये हो गया x माइनस 2, ये हो गया x माइनस 1, दिस इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, आप प्लेस करोगे इसको, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। ये बोल रहा है कि x माइनस 2, x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे अगर मैं नंबर चेक करूं तो 3 कहाँ पे लाए करेगा? क्या 3 यहाँ पे लाए करेगा इस रेंज में? यस और नो? 3 में डालूंगा जब मैं x माइनस 2 और x माइनस 1 में
3 डाल दूंगा तो क्या वो मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा? 3 - 2 × 3 - 1, इज इट ग्रेटर देन 0? Is it greater than 0? Is it greater than 0? Yes, it is satisfying. So it is a positive region. It is a negative region. It is a positive region. मेरे को कौन सा रीजन चाहिए? ग्रेटर देन 0 का. मेरे को कौन सा रीजन चाहिए? ग्रेटर देन 0 का. तो मेरा आंसर क्या आएगा? -∞ से 1 यूनियन यूनियन 2 से इंफिनिटी. बट C2C का स्टूडेंट कभी ये आंसर कर ही नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है. C2C का स्टूडेंट क्यों आंसर नहीं करेगा? क्योंकि उसको ये कंडीशन याद है कि a इज ग्रेटर देन 0 के ऊपर x शुड बी ग्रेटर देन 1 आना चाहिए था, x 1 से बड़ा होना चाहिए था. तो ये वाला केस पूरा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि x पूरा 1 से बड़ा होना चाहिए और इस कंडीशन के हिसाब से x 2 से बड़ा होना चाहिए. तो आपका आंसर क्या आएगा? x शुड बी ग्रेटर देन 2. सबको समझ में आया? आंसर आएगा 2 से लेकर इंफिनिटी तक. समझ गए सब लोग? यस और नो? अब थोड़ा हाई लेवल पढ़े. गाइस पूरी क्लास को ये चीजें क्लियर है? यस और नो? बेटा यहाँ नहीं है क्लियर तो पूछ लो, बता दूंगा. देखो बेटा अब पढ़ते हैं थोड़ा सा ग्राफिकल साइड पे, मतलब बहुत ज्यादा ग्राफ में नहीं है बट तुम्हें एक चीज सिखानी है. ये मैंने अभी तक आप लोगों को पढ़ा है, log AB इज इक्वल्स टू log B बाय log A. क्या मैंने ये चीज आप लोगों को पढ़ाई है? यस और नो? यहाँ पे मैंने आपको बोला कि बेटा B शुड बी ग्रेटर देन 0, A शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड A इज नॉट इक्वल टू 1. ये तीन कंडीशन के मैं राग शुरू के लेक्चर से अलापता हुआ आ रहा हूँ. तो मैं बोल रहा हूँ कि गाइस क्या मेरा फंक्शन ब्रेक हो रहा है? अगर मैं बोल रहा हूँ कि a अगर 0 से बड़ा है तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? ये 0 है तो a इधर लाई कर रहा है. यस और नो? क्या मैं ये बोलूंगा कि a इज ग्रेटर देन 0 को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे? यस और नो? a इज ग्रेटर देन 0 को बेटा y दबा लो बस अपने एक बार कीबोर्ड से, एक बार y दबा लो अपने कीबोर्ड से तो अच्छा लगेगा मेरे को. ठीक है, a इज ग्रेटर देन 0, a इज ग्रेटर देन 0 को ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा. बट तुम लोग देखो मैंने तुम्हें एक कंडीशन और सिखाई कि a 1 के इक्वल नहीं हो सकता. a अगर 1 के इक्वल नहीं हो सकता तो क्या ये पोर्शन आ गया, एक ये पोर्शन हो गया और एक आगे का पोर्शन हो गया. एक ये पोर्शन हो गया कि a कैन ईदर लाई बिटवीन 0 एंड 1 एंड a कैन बी ग्रेटर देन 1 बट a इज नॉट इक्वल टू 1. इज इट मेकिंग सेंस टू एवरीवन? यस और नो? यस और नो? एवरीवन विद मी? यस और नो? तो बेटा क्या क्वेश्चन की कैटेगरी दो पार्ट में डिवाइड हो सकती है? क्या ये, क्या मैंने जैसे तुम्हें बोला कि log 2 32 का आंसर तुम लोग 5 कर देते हो, तो क्या ऐसे भी तो हो सकता है कि वो बेस हाफ आ जाए? बेस हाफ आ जाए. अगर ये हाफ आ गया गाइस तो कौन सी कैटेगरी में फॉल हो रहा है? ये कैटेगरी नंबर 1 और कैटेगरी नंबर 2. बताओ अगर ये वाला क्वेश्चन का बेस जो है ये कौन सी कैटेगरी में फॉल हो रहा है? कैटेगरी नंबर 1 और कैटेगरी नंबर 2. बेटा सीधी सी बात है, हाफ की वैल्यू होती है 0.5. 0.5 कहाँ पे लाए कर रहा है? 0.5 इधर कहीं लाए करेगा. इज इट मेकिंग सेंस? तो बेस के हिसाब से क्वेश्चन चेंज हो जाएगा. अभी तुम्हें समझ आएगा क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ. बेटा अगर मैं लिखता हूँ log half 32, so can I write like this? log 32 upon log 1/2. बेस दोनों का 10, बेस दोनों का 10. Can I write like this? Simple. This property I have used. This property I have used. Can I write like this? Yes or no? ठीक है. तो बेटा log 32 upon log half आ गया. तो log half को क्या मैं ये लिख सकता हूँ? log 10 32, log 10 32 upon log 10 1 minus log 10 2. एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी बेटा log m by n. एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी बेटा log m by n इज इक्वल्स टू log m माइनस log m. क्या ये प्रॉपर्टी लिखवाई थी आप लोगों को? यस और नो? क्या ये प्रॉपर्टी लिखवाई थी? यस और नो? ठीक है, तो log m माइनस log n के क्या इसको मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ? क्या मैं इसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ? बेटा इसकी वैल्यू क्या होती है हमेशा? इसकी वैल्यू क्या होती है हमेशा? इसकी वैल्यू आप लोगों को सबसे पहले सिखाई थी बेटा. इसकी वैल्यू होती है 0 log 10 32 अपॉन माइनस का log 10 2. क्या ये हो गया? यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? यस और नो? यहाँ तक सबको क्लियर है? से यस और नो?
बेटा क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इक्वल टू माइनस साइन log 232? क्या मैं ये लिख सकता हूँ इक्वल टू माइनस का साइन log 232? कैसे? क्योंकि log a बाय log b क्या होता है, log a बाय log b क्या होता है, log बेस b a। ये प्रॉपर्टी आपको सबसे पहले सिखाई थी। तो इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर तो हम जिंदगी भर करते हुए आए हैं, 2 की पावर 5 इज इक्वल्स टू 32, तो log 232 इज इक्वल्स टू 5 होता है। तो इसका आंसर 5 है, तो इसका आंसर क्या आया, -5। क्या ये चीज सबको समझ में आई, यस और नो? तो जब आपका बेस 0 से लेकर 1 तक लाई करेगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, हमेशा नेगेटिव आएगी। जब आपके बेस की वैल्यू a इज ग्रेटर देन 1 होगी, जब आपके बेस की वैल्यू a इज ग्रेटर देन 1 होगी, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी। सबको समझा, सबको समझा, यस और नो? मजा आया पढ़ के कंसेप्ट? बेटा इतनी बारीकियों में कभी गए थे रिपीटर्स, इतनी बारीकियों में कभी रिपीटर्स गए हो, कभी देखी है सब चीजें कि ए का बेस पे इतनी सारी चीजें खेली जा रही है? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये तो सीख लिया हमने, ये तो हमने सीख लिया सर, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब हम ये ट्राई करेंगे, लॉग लॉग बेस हाफ है और यहाँ पे x है और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। तो तुम लोग मेरे को बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा। अपन सॉल्व करेंगे साथ साथ, पहले तुम लोग ट्राई करोगे फिर मैं तुम्हारे साथ ट्राई करूंगा। पहले 2 मिनट तुम लोग ट्राई करो फिर मैं तुम्हारे साथ ट्राई करूंगा। हाँ बेटा सोहम, बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा आपका। बट ये ग्रेटर देन का साइन है, तो इसमें एक्स का जो आंसर आ रहा होगा या तो वो 1/8 से बड़ा आ रहा होगा या फिर वो 1/8 से छोटा आ रहा होगा। बेटा जिसको नहीं समझा वो लोग समझने का ट्राई करेंगे, जिसको नहीं समझा वो लोग हर एक स्टेप मेरे साथ समझने का ट्राई करोगे। एक्स इज ग्रेटर देन, उल्टा कर दिया बेटा अरिंदम घोष, उल्टा कर दिया। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं, देखते हैं। कोई भी बच्चा परफेक्ट नहीं होता है लॉग्स के अंदर पहली क्लास में, डोंट वरी। It's all about the practice. It's all about the practice. Let's look at it, beta. I have decided that here my base is lying in between 0 and 1. Here my base is lying in between 0 and 1. Okay? क्या आप लोगों को ये चीज पता है बेटा कि अगर कोई भी चीज का बेस अगर 0 और 1 के बीच में लाई करता है तो उसकी वैल्यू क्या आती है, उसकी वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है। उसकी वैल्यू क्या, प्रतीक्षा करेक्ट आंसर, उसकी वैल्यू क्या आती है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है, करेक्ट। तो गाइस अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ये -5 इज ग्रेटर देन -3, सॉरी -3 इज ग्रेटर देन -5, इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट, यस और नो? बस पहले जो मैं सिखा रहा हूँ वो सीखो, तुम्हें आंसर आ जाएगा अपने आप एंड में क्यों ऐसा होता है, ठीक है। अभी देखते हैं बेटा एक बार के लिए,
-3 इज ग्रेटर देन -5, इज इट करेक्ट और नॉट? बेटा हम लोग हमेशा बोलते हैं सर माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों साइड पे जब आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दोगे, जब आप दोनों साइड पे माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या ये रह जाएगा, तो क्या ये रह जाएगा, तो क्या साइन होना चाहिए, ये साइन होना चाहिए। तो देयर इज अ रूल बेटा कि जब भी आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हो ना पूरी इक्वेशन को, किसको, पूरी इस इक्वेशन को जब भी आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बीच वाला साइन चेंज हो जाएगा। सबको लॉजिक समझा, सब रटवा देते हैं कि माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो तो चेंज हो जाता है, कोई समझाता नहीं है इसको कि ये क्यों चेंज हो रहा है, कि ये क्यों चेंज हो रहा है। अब आप लोगों को समझा ये क्यों चेंज हो जाता है, अब आप लोगों को समझा ये क्यों चेंज हो जाता है साइन। वापस देखो, वापस देखो, क्या मैं बोल सकता हूँ -2 इज ग्रेटर देन -1 इज ग्रेटर देन -2, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस ऑफ -2 माइनस ऑफ -1, इसको करोगे तो ये 2 हो जाएगा, इसको करोगे ये 1 हो जाएगा। साइन चेंज हुआ या नहीं हुआ, साइन चेंज हुआ या नहीं हुआ, साइन चेंज हुआ या नहीं हुआ, यस और नो? ठीक है, अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, log x अपॉन log हाफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, फर्स्ट प्रॉपर्टी log ab इज इक्वल टू log b बाय log a। याद है सबको, याद है सबको? log हाफ को क्या लिख सकते हैं, log x अपॉन log 1 माइनस log 2 इज ग्रेटर देन 3। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0। log x अपॉन माइनस log 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। यहाँ तक सबको क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है, यस और नो? यहाँ तक सबको क्लियर है तो पूरी क्लास एक बार यस लिखेगी। यहाँ तक अगर आप लोगों को क्लियर है तो पूरी क्लास यस लिखेगी जल्दी। यहाँ तक अगर सबको, चलो वेरी गुड। तो बेटा क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये यही तो बोल रहा है माइनस लॉग एक्स अपॉन लॉग 2 इज ग्रेटर देन 3। कोई भी ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है ना क्लास में जिसको ये लग रहा हो कि सर माइनस साइन तो नीचे था तो ऊपर क्यों आ गया। बेटा 2 अपॉन -3 करोगे तो -2/3 आंसर होता है, कोई फर्क नहीं होता उन दोनों में। 2 अपॉन -3 करोगे तो -2/3 आंसर होगा, बेसिक रूल है मैथ्स का। क्या ये हो गई मेरे पास इक्वेशन, क्या ये मेरे पास इक्वेशन हो गई, यस और नो, यस और नो? बेटा अगर अब मैं ऐसे लिखूंगा log x अपॉन log 2 इज लेस देन इक्वल टू -3, क्या ये स्टेप आप लोगों को क्लियर है, यस और नो? क्या ये स्टेप आप लोगों को क्लियर है, यस और नो? जल्दी बताओ, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? ये बीच का साइन कैसे चेंज हो गया वो आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था उधर, वो आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था, पूरी इक्वेशन को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरी इक्वेशन को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया और बीच वाला साइन चेंज कर दिया। क्या मैं ये लिख सकता हूँ log x विल बी लेस देन -3 ऑफ log 2? क्या मैं ये लिख सकता हूँ log x विल बी लेस देन -3 ऑफ log 2, यस और नो? कैन आई राइट लाइक दिस कि log x इज लेस देन -3 ऑफ log 2? एक प्रॉपर्टी सिखाई थी बेटा, log जब बेस 10 होगा और m की पावर n होगा तो n आगे आ जाएगा, n आगे आ जाएगा। ढंग से देखो, log x इज लेस देन log 2 और इसकी पावर क्या हो जाएगी, -3। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है, यस और नो, यस और नो, यस और नो? ये स्टेप सबको क्लियर हुआ? ये प्रॉपर्टीज है बेटा, ये प्रॉपर्टीज तो याद करनी पड़ेगी, उसके बिना तो बेड़ा नहीं पार हो पाएगा। बेटा यहाँ पे भी लॉग दे रखा है, यहाँ पे भी लॉग दे रखा है, सो कैन आई कंपेयर देम, x विल बी लेस देन 2 की पावर -3। कैन आई कंपेयर लाइक दिस? मैंने आप लोगों को बताया था log x इक्वल्स टू log y दे रखा होता है तो हम लिख देते हैं x इक्वल्स टू y एंड x शुड बी ग्रेटर देन 0, y शुड बी ग्रेटर देन 0। क्या मैंने ये प्रॉपर्टी भी आपको लिखवाई है, क्या मैंने ये प्रॉपर्टी भी आपको लिखवाई है, यस और नो, यस और नो? तो बेटा ये क्या हो गया, x विल बी लेस देन 2 की पावर, मतलब ये हो जाएगा 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 3। ये 2 की पावर -3 1/3 कैसे हो गया, ये देखो, ये देखो गाइस, मैं लिखता हूँ 3 की पावर -3 इज इक्वल्स टू 1/3 की पावर 3। ये होता है इसका रूल, ठीक है? जब भी ऐसा दे रखा हो ना a की पावर -b तो इसका हो जाएगा 1/a की पावर b। ये रूल है बेटा, ये रूल है, ठीक है, ये रूल है। यहाँ तक सबको चीजें क्लियर है, यहाँ तक सबको चीजें क्लियर है? बेटा ये बोल रहा है कि x बिलोंग्स टू ना -∞ से लेकर 1/8 तक, x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर 1/8 तक। यहाँ तक सबको क्लियर है? बट इसमें एक पंगा हो जाएगा बेटा, मैंने आपको बोला था जब भी आप कंपैरिजन करो ना तो ये दोनों वैल्यूज चेक कर लेना, दिस हैज टू बी ग्रेटर देन 0। तो क्या x की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी? क्या मैं लिख सकता हूँ मेरा आंसर जो होगा वो 0 से लेकर 1/8 तक होगा?
क्या मैं लिख सकता हूँ कि मेरा जो आंसर होगा वो 0 से लेकर 1/8 तक होगा इस क्वेश्चन के लिए? पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या आप लोगों को समझ आया कि एक्चुअल में किया क्या है अपन ने? पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। और ये टेक्निकली 2017 या 2016 का कैट का क्वेश्चन है। ये 2017 या 16 का कैट का क्वेश्चन है। क्या आप लोगों को पूरी पिक्चर क्लियर है तो यस लिखना। क्या आप लोगों को पूरी पिक्चर क्लियर है तो यस लिखना। हरिप्रसाद बेटा क्या समझ नहीं आया मेरे को बताओ, मैं वापस से एक बार बता दूंगा आपको। आप वो पॉइंट बताओ जो आपको समझ नहीं आया। आप वो पॉइंट बताओ जो आपको समझ नहीं आया बस। लेस देन में बेटा क्या? लेस देन में क्या नहीं समझ आया? बट सर आई डिड लाइक प्रीवियस वन, आई गॉट x इज लेस देन 9। बेटा आपने गलत कर दिया ना, वही तो दिक्कत है ना। मैंने आपको क्या बोला था जब हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया? किसी को डाउट है तो सुनो ढंग से कि प्रीवियस क्वेश्चन के हिसाब से कर रहे हैं तो सर मेरा आंसर x इज ग्रेटर देन और इक्वल हाउ लेस देन। बेटा कौन सा लेस देन वो तो बता दो हरिप्रसाद, अब मैं गेस करूं कौन सा वाला लेस देन। इतने सारे लेस देन के साइन लगे हुए हैं, आप मेरे को बताओ। एक बार पूरा स्टेप लिख दो, उसको हल्का सा लिख दो यार, कोई टाइम नहीं लगेगा हरिप्रसाद उसको लिखने में। बेटा सुब्रता मैंने यही तो बोला था कि यार आप चेक क्या करोगे कि आप बेस चेक करोगे। वो बेस उसके पिछले क्वेश्चन का बेस देखो वो कहाँ है, वो कौन से वाले बेस में आ रहा है? ए इज ग्रेटर देन 1 वाले बेस में आ रहा है। और अभी हमारा क्वेश्चन कौन से बेस का था? 0 A 1 इस बेस का था। x ग्रेटर देन 1/8, x ग्रेटर देन। बेटा ये प्रॉपर्टी सिखाई थी हरिप्रसाद की -2 है, देखो -2 जो है वो -1 से छोटा होता है। -2 जो है वो -1 से छोटा होता है। अगर मैं पूरी इक्वेशन को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दूं, -2 -1 ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। यहाँ तक क्लियर है? ये यहाँ तक क्लियर है? सुब्रता आई थिंक आई हैव क्लियर्ड योर डाउट। ओके यहाँ तक क्लियर है हरिप्रसाद? यस तो लिख दो बेटा, यहाँ तक क्लियर है, तुम्हारे लिए बता रहा हूँ। बेटा उसका बेस चेक कर सुब्रता साहू, पिछले क्वेश्चन का बेस चेक कर, इस क्वेश्चन का बेस चेक कर। हरिप्रसाद आपको ये भी क्लियर नहीं है? बेटा -2 और -1 में कौन सा नंबर बड़ा होता है? -2 और -1 में कौन सा नंबर बड़ा होता है बेटा? ये अब मेरे को अगर ये पढ़ाना पड़ गया तो फिर बात ही क्या रह गई। इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा होता है हरिप्रसाद? बेटा इतना टाइम लग रहा है आपको आंसर करने में, अब बाकी आई नो द कन्वर्जन टू लेस टू ग्रेट। तो बेटा आपको क्या नहीं समझ आया वो तो बताओ फिर। x इज लेस देन 2 की पावर -3। ये 2 की पावर -3 को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 1/2 की पावर 3। क्या नहीं समझ आया आपको बताओ? तो इसको इसलिए ऐसे रिप्रेजेंट किया x इज लेस देन 1/8। x 1/8 से छोटा होना चाहिए, बट x 0 से बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि वो लॉ की बेसिक प्रॉपर्टी है। और शुभ्रता ये देख पिछले क्वेश्चन का, ये अगर क्वेश्चन फॉर्मेट है तो a उधर ग्रेटर देन 1 है, और ये वाले क्वेश्चन में a की वैल्यू देख क्या है, इट इज 0 एंड 1 के बीच में। समझ आ जाएगा देखो क्यों है। आई कांट एक्सप्लेन इन चैट बॉक्स, आई एम यूजिंग फोन। ठीक है बेटा मैं आपको परमिशन दे रहा हूँ, आप बोल के मेरे को बता दो एक बार के लिए। जल्दी करो यार बेटा। अलाउ टू टॉक, बोलो बेटा। Okay, okay. Okay. The base, we can convert that base half into 2 raised to -1, right? हरिप्रसाद आपको ऑप्शन दे दिया है बेटा बात करने का, आप बोल सकते हो, आप बोलोगे अब आप। I'm speaking, sir. I'm speaking. Sir, we can convert that half into 2 raised to -1. बोलना ही नहीं चाहते बेटा, अब क्या बोलूं Hello. मैं।
गाइस ये मिटा रहा हूँ, एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। शुभ्रता डाउट क्लियर हो गया? ही इज स्पीकिंग, तो मेरे पास आवाज क्यों नहीं आ रही अगर वो बोल रहा है तो? हेलो हेलो। हरी बेटा बोलो, हरी बेटा बोलो। बेटा इतना टाइम थोड़ी है यार। ठीक है बेटा। बेटा एक क्वेश्चन ट्राई करो सब लोग। लॉग बेस हाफ और अंदर दे रखा है log 2x इज ग्रेटर देन 0। सब लोग ट्राई करो, ढंग से ट्राई करना। बेस अलग अलग है दोनों के, ढंग से ट्राई करना। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बेस अलग अलग है। बोलेगा सॉल्व फॉर x, सिंपल यही बोलेगा बस क्वेश्चन में, सॉल्व फॉर x। हरिप्रसाद मैं आपको टाइम दूंगा बेटा, लास्ट में जब ये मीटिंग एंड कर रहा हूँ ना तब आपसे बात कर लूंगा एक बार, ठीक है? डोंट वरी। नो वैल्यू पॉसिबल। नहीं बेटा वैल्यू तो पॉसिबल होगी इसमें, इंटीग्रल नहीं बोला है उसमें। अरिंदम ध्यान से देख, उसमें इंटीग्रल नहीं बोला। देखो बेटा मेरे को पता था इसके अंदर काफी लोग गलती करोगे, गलती सुधारनी है। लॉग हाफ वाई दे रखा है इज ग्रेटर देन 0। लॉग हाफ वाई दे रखा है ग्रेटर देन 0। सिंपल स्टेप से जाऊंगा। लॉग, ये हो गया लॉग वाई बाय लॉग हाफ। यहां तक सबको क्लियर है? यस और नो? यहाँ तक सबको क्लियर है? यस और नो? यस और नो यहाँ तक सबको क्लियर है? बेटा रेंज आएगी एक्स की, ग्रेटर देन का साइन है। अच्छा एक और चीज है, तुम लोगों को नहीं पता, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू साइन होता है तो हमेशा रेंज आती है एक्स की। ग्रेटर देन इक्वल टू साइन होता है तो रेंज आती है एक्स की, जब इक्वल टू का साइन होता है तब सिंगल वैल्यू आती है, तब सिंगल वैल्यू आती है, ठीक है? चलो एक बार देखते हैं, यहाँ तक सबको क्लियर है? गाइस क्या मैं अब सीधा स्टेप लिख रहा हूँ, लॉग वाई और नीचे माइनस लॉग टू, ये स्टेप सबको क्लियर है? लॉग वाई अपॉन माइनस लॉग टू, ये स्टेप सबको क्लियर है? यस और नो? यस और नो? ठीक है, तो लॉग वाई अपॉन माइनस ऑफ लॉग टू, ठीक है? ये रह गया अब क्वेश्चन। क्या मैं इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या? क्या मैं इसको अभी डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? बेटा नहीं कर सकते। पॉजिटिव से पॉजिटिव चीजें कैंसिल होती है, देखो 2 × 3 + 5 ग्रेटर देन 8, ग्रेटर देन 8, तब आप इसको काट देते थे, 2 इज ग्रेटर देन 4 कर देते थे। बट जब भी नेगेटिव साइन होगा ना तो नेगेटिव साइन से आप सीधा काट नहीं सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन को दो साइड पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस साइन से, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए। तो log y बाय log 2 इज लेस देन 0 हो जाएगा अगर मैंने पूरी इक्वेशन को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया तो। log y बाय log 2 माइनस ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्लियर और नो? यस और नो?
गाइस यस और नो? यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर तो ये क्या बचेगा? अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर तो क्या बचेगा? log ग्रेटर देन 0, log y इज लेस देन 0। log y क्या लिया था अपन ने? y क्या है हमारा? log y हमने लिया क्या है? ये है बेटा क्वेश्चन, log y था हमारा log ऑफ 2x लेस देन 0। अब इसका बेस 10 हो जाएगा, अब इसका बेस 10 हो जाएगा, तो log 2x इज लेस देन 10 की पावर 0, log 2x इज लेस देन 1, और log 2x अगर लेस देन 1 है तो मेरा x का वैल्यू क्या आएगा? x विल बी लेस देन 2 की पावर 1, तो आंसर आएगा x इज लेस देन 2। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है? यस और नो? पहला स्टेप ये है। अभी तक डेफिनेशन चेक नहीं किया है, अभी तक तो डेफिनेशन चेक ही नहीं की है उसकी। बेटा एक कंडीशन और चेक करेंगे ना, 1/2 a is not equal to 0, a is greater than 1, a is greater than 1, a is greater than 0, a is not equal to 1 and b is greater than 0। हमने ये चेक कर लिया, ठीक है, a is greater than 0 ठीक है, a हाफ 1 के इक्वल नहीं, ये भी ठीक है। अब ये कंडीशन रह गई log b वाली। अब आपका कंडीशन की वजह से देखो आज आंसर चेंज हो गया, यहाँ पे आएगा log 2x is greater than 0 और x should be greater than 2 की पावर 0, मतलब x should be greater than 1। पहले आपका आंसर आ रहा था x should be less than 2, तो इसका मतलब क्या होता? ये देखो और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ये यहाँ पे 2 आ रहा है, तो ये बोल रहा है x should be less than 2, इसके हिसाब से ये मेरा फाइनल आंसर जो बहुत बच्चे आंसर करके आएंगे। बट इस कंडीशन को भी तो लोगे जो मॉड की डेफिनेशन है, वो है x इज ग्रेटर देन 1, तो 1 यहाँ पे है और वो बोल रहा है कि इस रेंज में लाई करेगा, इस रेंज में लाई करेगा, 2 से तो छोटा होगा और 1 से बड़ा होगा। तो क्या आया मेरा आंसर? 1 से लेकर 2, 1 से लेकर 2, यस और नो? ये है बेटा इसका फाइनल आंसर, ये है इसका फाइनल आंसर। सबको कंसेप्ट समझा? बेटा कुछ नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप जाओगे, हर एक प्रॉपर्टी का ध्यान रखोगे तो इट वोंट बी डिफिकल्ट फॉर यू। स्टेप बाय स्टेप जाओगे, नॉर्मली करोगे, तो फिर स्टेप बाय स्टेप जाने के बाद तुम्हें कभी डिफिकल्टी नहीं आएगी लॉग के क्वेश्चंस में। इज इट मेकिंग सेंस टू एवरीवन? इज इट मेकिंग सेंस टू एवरीवन? यस और नो? यस और नो? गाइस पूरी क्लास से पूछ रहा हूँ, समझ आया है क्वेश्चन कैसे हुआ? ये कैट का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो बेटा एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं एंड देन वील रैप इट अप। लॉग बेस 2 में है, फिर लॉग वापस से एक बेस 2 में है और अंदर एक लॉग हाफ बेस में x दे रखा है, अंदर एक हाफ बेस में और ऊपर x दे रखा है, दैट इज लेस देन इक्वल टू 0, दैट इज लेस देन इक्वल टू 0। You can try this question, I'll give you the solution to this question and after that we are done, after that we are done for the day। You can post your reviews, you can do whatever you want to and I'll help you out with all your questions।
देखो बेटा अभी भी काफी लोगों के ना क्या हो रहा है, आंसर जो आ रहे हैं, इज इट करेक्ट? हाँ बेटा, नहीं बेटा अभी बता रहा हूँ, आंसर देखना अपना। इसको सबसे पहले क्या ले लोगे, इसको y ले लोगे, log 2 y इज लेस देन 0, y इज लेस देन, इसको पूरे को y ले रहे हैं, ठीक है, y इज लेस देन 2 की पावर 0, y इज लेस देन 1। यहाँ तक सबको क्लियर है, यस और नो? यहाँ तक सबको क्लियर है, यस और नो? जस्ट टाइप है यस और नो, ठीक है। ये ले लिया, इस वाले पूरे पोर्शन को z ले लूंगा, इस वाले पूरे पोर्शन को z ले लूंगा, तो ये हो गया log 2z, log 2z इज लेस देन 1। सबको समझ आया यहाँ तक? log 2z इज लेस देन 1 सबको समझ में आया, log बेस 2z लेस देन 1 होगा, सबको समझ में आया? ठीक है, ठीक है, तो z इज लेस देन 2 की पावर 1, ठीक है, z इज लेस देन 2, ये भी सबको समझ में आया? ये भी सबको समझ में आ गया सर। लास्ट स्टेप रह गया log हाफ x इज लेस देन 2। बेटा सिंपल रूल था, सिंपल रूल था, जब भी बेस में हाफ आ जाए डिवाइड कर दिया करो log x बाय log हाफ इज लेस देन 2। ये हो गया log x अपॉन माइनस log 2। ये कैसे आया है सबको समझता है? ये स्टेप कैसे आया सबको समझा? log x अपॉन माइनस log 2 सबको समझ में आया ये कैसे आता है स्टेप? इज लेस देन 2, ठीक है। ये हो जाएगा log x अपॉन log 2 इज ग्रेटर देन माइनस 2। ये स्टेप सबको समझ में आया? ये स्टेप सबको समझ में आया, यस और नो? ये हो गया log x इज ग्रेटर देन माइनस 2 log 2। ये स्टेप भी सबको समझ में आया? करेक्ट आंसर। स्वाति गलत है, स्वाति गलत है, देख अभी। ये स्टेप सबको समझ में आया? log x इज ग्रेटर देन log 2 की पावर माइनस 2। तो क्या मैं लिख सकता हूँ x विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 की पावर माइनस 2, यानी कि x विल बी ग्रेटर देन 1/4। x विल बी ग्रेटर देन 1/4। ये चीज सबको समझ में आई? तुम लोगों का साइन चेंज नहीं हो रहा है गाइस, तुम लोग साइन चेंज नहीं कर पाओगे, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, इसीलिए इस स्टेप से जाओ, इस स्टेप से जाओ। तुम लोग नहीं ध्यान रख पा रहे हो कि a जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो उस टाइम पे हमें क्या करना है। तो इसलिए इसी स्टेप से जाओ जो पढ़ा रहा हूँ, इसी स्टेप से जाओ जो पढ़ा रहा हूँ। क्या ये चीज सबको क्लियर है? ये तो ठीक है, बट तुमने क्या मिस करा, तुमने क्या मिस करा? तुम्हें ये भी तो चेक करना था y इज ग्रेटर देन 0 एंड z इज ग्रेटर देन 0। ये दो कंडीशन भी तो चेक होगी ना। अगर मैं देखूं तो ये मेरी y थी log 2 log हाफ x, ये मेरी y थी, दिस हैज टू बी ग्रेटर देन 0, तो log हाफ x शुड बी ग्रेटर देन 2 की पावर 0 मतलब 1, 2 की पावर 0 मतलब 1। अब इसको सॉल्व करोगे वापस से log x अपॉन माइनस का log हाफ, log x अपॉन माइनस का log हाफ इज ग्रेटर देन 1। ये हो जाएगा log x, माइनस नहीं आएगा, log x अपॉन log हाफ, फिर नीचे आ जाएगा माइनस log 2 इज ग्रेटर देन 1, फिर ये आ जाएगा log x अपॉन log 2 इज लेस देन 1, फिर ये आ जाएगा log x यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, यहाँ पे आ जाएगा फिर log x अपॉन log 2, ये उधर चला जाएगा, इज लेस देन -1 log 2। तो x इज लेस देन 2 की पावर -1, यानी कि x इज लेस देन हाफ। क्या ये स्टेप सबको समझ में आया या वापस से समझाऊं? ये स्टेप सबको समझ में आया या वापस से समझाऊं? सिंपल है बेटा, y इज ग्रेटर देन 0 को चेक करना बहुत जरूरी था, तब जाके आपका आंसर आया 1/4 से लेकर x बड़ा होगा और 1/2 से x छोटा होगा। ये है इसका फाइनल आंसर। 95% ऑफ द स्टूडेंट्स इसका आंसर नहीं निकाल के आएंगे पेपर के अंदर, बट तुम्हारे सामने टेक्निक है, तुम्हारे सामने ट्रिक है, तुम्हारे सामने कंडीशन है, तुम्हारे सामने हर चीज है जो तुम्हें लगानी है वहां पे। अगर अब भी आप नहीं कर पे आ पा रहे, तो एक कोई ट्यूशन टीचर आपको घोट के कुछ नहीं पिलाने वाला। ये चीज को याद रखो, हम आपको पढ़ा सकते हैं, एफिशिएंट वे बता सकते हैं, हर एक कंडीशन बता सकते हैं, उसको लगाना, उसको प्रैक्टिस करना इज ऑल इन योर हैंड्स, नॉट इन आवर हैंड्स। इज इट मेकिंग सेंस टू एवरीवन? इज इट मेकिंग सेंस टू एवरीवन कि इसका आंसर ये क्यों आया 1/4 से लेकर x से लेकर 1/2 तक? समझ गए? So beta, this is the quality of teaching that we do in C2C. This is the quality of teaching that we do in C2C mentors. Okay, I hope guys, जितने भी लोग हो अभी क्लास के अंदर, I just want one thing, positive feedback. जो भी है तुम्हें छोटे से छोटे वर्ड्स में बताओ कि तुम्हें कैसा लगा लेक्चर। पहला नेगेटिव फीडबैक, दूसरा तुम्हें कहीं पे लगा कि यार मैंने बहुत गलत पढ़ा दिया, बेकार पढ़ाया, कूड़ा पढ़ाया, कोई बात नहीं, आप दो नेगेटिव फीडबैक, मैं इस पे इंप्रूव कर लूंगा और इसको कंटिन्यू रखूंगा।
और जो लोग भी हमारे साथ एसोसिएट होना चाहते हैं, यही पेस रहेगा क्लासेस का ऑलमोस्ट इस पे, या फिर कभी कभी इससे भी थोड़ा अपन ट्राई करेंगे कि नीचे आ जाए, इससे भी थोड़ा थोड़ा नीचे आ जाए। रिवीजन हर चीज का, रिवीजन हर चीज का, क्वेश्चन बैंक हर चीज का, क्वेश्चन बैंक हर चीज का, प्रैक्टिस करने के लिए इनफ मटेरियल, प्रैक्टिस करने के लिए इनफ मटेरियल। तो ये सारे हमारी पॉजिटिव्स हैं, ये सारे हमारे पॉजिटिव्स हैं। अब आप लोगों से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि आप एक पॉजिटिव फीडबैक या नेगेटिव फीडबैक जैसा भी आपको सेशन लगाओ आप देके जाओ, मेरे को नहीं फर्क पड़ता, आप सिर्फ पॉजिटिव दो। मैंने नहीं बोला, आपको लगता है कि मैंने बहुत घटिया पढ़ाया, आप नेगेटिव देके जाओ, मैं उस पर इंप्रूव कर लूंगा आगे आने वाले टाइम पे। तो आई जस्ट वांट कि तुमने जो जो सीखा, किसी ने यार बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ी हुई, log ab की डेफिनेशन नहीं पता लोगों को कि ये a is greater than 0, b is greater than 0 and a is not equal to 1। जिसने ये सब पढ़ा है फर्स्ट टाइम, तो आप लोग अपना कमेंट डाल दो, कमेंट डाल दो कि इट वाज अ गुड सेशन, इट वाज अ बैड सेशन, सर मजा नहीं आया, पता नहीं कैसे पढ़ाते हो आप। जो भी आपको ठीक लगे प्लीज एक कमेंट डाल के जाना, प्लीज एक कमेंट डाल के जाना। हरिप्रसाद बेटा अपना डाउट भी पूछते जाना, मन में मत रखना कुछ भी। द गाइस द लेक्चर इज ओवर फ्रॉम माय साइड, यू कैन डेफिनेटली लॉग आउट फ्रॉम हेयर। एंड अगर किसी को कुछ पूछना है और कुछ डाउट है, प्लीज स्टे एंड आस्क मी आउट, आई एम रेडी टू हेल्प यू गाइस। थैंक यू अरिंदम। अच्छा सीख लिया हरी, ठीक है बेटा। और किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछ लो, नहीं तो यू कैन लीव, यू कैन लीव गाइस। Thank you, beta. Thank you so much for attending this particular lecture, and I'll see you in classes if you'll join us. Okay. Bye bye. Take care, everyone. All the best for your future.